So students, in the last lecture, last 2 or 3 lectures, we are discussing about RBI, the functions of RBI. Then we are watching the functions of commercial bank or commercial bank. Afterwards, we are also watching. Then we are watching the cooperative societies, credit societies. Afterwards, we are watching the different types of organization which is help to the government to collecting fund and mobilize the fund or distributed fund very properly. On that manners, we are also these all things or these all institutions are perfectly help to the government. Therefore, it's called organized sectors or organizational institutions. Now we are watching unorganized sectors. In the unorganized sectors, there are different types of unorganized personalities or characterized are also help to collecting or mobilizing money and provided to the different types of peoples who are needed short-term loan or long-term loans. Okay, so therefore they in unorganized sectors are specially get preferences for endogenous bank. Sometimes they are getting preference to the money lenders, and sometimes they are given preferences to unregulated non-banking financial intermediaries. Okay, so these kind of institutions are specially available in rural areas, and in rural areas they are working very properly. So one by one we are watching. First one, endogenous bankers. So you know that commercial bank is provided short term, long term and medium term loans, right? Sometimes the farmers, the big one farmers or whose acres of land, that kind of farmers, then sometimes traders wants short-term loans in very quick response. Okay, so that time they are taking help to the intermediaries. Commercial bank is taking help to the intermediaries, or sometimes they are taken help to the different kind of endogenous societies. That is called endogenous bank, just like we are call it पेडी. ओके, तो ये इंडिजीनियस जो बैंक होती है वो शॉर्ट टर्म का ही क्रेडिट प्रोवाइड करती है या लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कमर्शियल बैंक को एज एन सपोर्टर्स का काम करती है, क्योंकि ये शॉर्ट क्विक लोन देने के लिए इंडिजीनियस बैंकर्स बनाए गए. ये टाइप्स के लोग या ये टाइप्स इंडिजीनियस बैंकर्स मोस्ट ऑफ सोशल स्टेरा या सोसाइटी में जो बड़े लोगों से लेकर नीचे दबे कुचले लोग हैं या जो पुअर पर्सन है, इनको देखकर उसके हिसाब से क्रेडिट का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है. अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो उनको कम इंटरेस्ट रेट, और अगर कम पैसे वाला है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट. इस तरह से वो लोग सोशल स्टेरा डिसाइड करके इंटरेस्ट रेट कंफर्म करते हैं. इंडिजीनियस बैंकर्स अपने में ही जो मेंबर्स होते हैं उनसे फ़ंड कलेक्ट करते हैं और उन फंड को बाद में शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये लोन स्पेशली ये लोग बैंक नहीं होते, ये अनबैंक की तरह काम करते हैं, इसलिए वो जितना चाहिए उतना इंटरेस्ट रेट एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता है. तो सोशल स्टेरा के हिसाब से वो लोग इंटरेस्ट रेट एक्सेप्ट करते हैं. अगर कोई पर्सन रिच पर्सन है तो उसको कम इंटरेस्ट रेट, और कोई पर्सन लोअर या पुअर है तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट. इस टाइप का ये टाइप्स का ट्रांजैक्शन इसमें होता है. इसको स्पेशली हुंडी कहा जाता है. ओके, एज एन हुंडी की तरह ये काम होता है, मतलब जो गरीब है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और जो बड़ा है उससे कम इंटरेस्ट रेट, ऐसा ये टाइप्स का ट्रांजैक्शन होता है. ये कमर्शियल बैंक को सपोर्टिंग का काम करते हैं या इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं. ये टाइप्स के लोन स्पेशली एग्रीकल्चर्स, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को दिए जाते हैं. ये टाइप्स के लोन एग्रीकल्चर, ट्रेडर्स और इंडस्ट्री को दिए जाते हैं. नेक्स्ट है मनी लेंडर्स. अभी ये अगर विलेजेस या रूरल एरियाज़ में देखोगे तो इनका इफ़िशिएंट ट्रांजैक्शंस होता है मनी लेंडर्स का.
मनी लेंडर्स ये एक्सेप्शनली लो इंटरेस्ट रेट एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ ये हाई इंटरेस्ट रेट ही चार्ज करते हैं एज एन फार्मर्स या स्मॉल ट्रेडर्स से। इनके दो मोटिव्स होते हैं, समटाइम्स दे आर प्रोडक्टिव मोटिव और समटाइम्स दे आर unproductive motives. Productive motives means getting more and more profit, so they are accepting more and more interest rate, and unproductive means if the needed they are accepting more interest rate. Okay, if not need they are not accepting any kind of high interest rate. Okay, and sometimes they are thinking like progressive, but sometimes they are thinking only absorb the poor person. Okay, so the laborers, small and marginal farmers are taking loan from borrowing loan from this kind of money lenders. Okay, and you knows that at the present RBI is control on all kind of money lenders, so therefore RBI is taking restrictions to the money lenders, so no one should be exploit to the farmers, small farmers, marginal farmers or any kind of traders. Okay, तो शुरुआत में मनी लेंडर्स के बारे में अगर सोचेंगे तो गांव में मनी लेंडर्स का बहुत, रूरल एरियाज़ में मनी लेंडर्स का बहुत ही इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे लोग मनी लेंडर्स से ही क्रेडिट लेने का काम करते हैं। मनी लेंडर्स जो होते हैं वो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव उनका मोटिव होता है। कई बार वो प्रॉफिट के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट हमेशा ही हाई चार्ज होता है। वो प्रॉफिट के लिए कई बार और कई बार अपनी फंडामेंटल नीड्स या लग्जरियस नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए भी वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इनसे लोन लेने वाले लोग हैं लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। कभी बार आर्टिशंस एंड स्मॉल ट्रेडर्स ही इनसे लोन लेते हैं। अगर इनकी तरफ देखोगे तो अभी RBI ने इनके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल रखना स्टार्ट किया है, तो RBI इनको फार्मर्स या बाकी सारे लोगों को एक्सप्लोटिव या परेशान करने से रोक सकती है। ओके, नेक्स्ट है अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज ये बैंक ही नहीं होता है या बैंक की तरह काम नहीं करते। इसमें चीट फंड होता है, निधि होता है या लोन कंपनीज होती है। ओके, अभी चीट फंड आप लोग सिंपल लैंग्वेज में जो वुमेन्स बीसी नाम का कुछ टाइप्स करती है उसको हम लोग चीट फंड कह सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर वो जेंट्स या मेल करते हैं, वो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स करते हैं, तो उसको चीट फंड में कन्वर्ट होता है। चीट फंड में बहुत सारे मेंबर्स मनी पहले मोबिलाइज करने का काम करते हैं या जमा करने का काम करते हैं, और देन इफ़ एनी वन मेंबर्स वांट टू यूज़ दैट वन, उसको कुछ मैच्योरिटी अमाउंट के लिए वो अपने पैसों में से कुछ पैसे उसको दिए जाते हैं, और जब उसके पास आएंगे तो वो पैसे उसको उस मैच्योरिटी पीरियड में वो जमा करने। उसी के साथ अगर उसका नंबर आ जाएगा, वो जो पीरियड डिसाइड हुआ है या जितने लोग डिसाइड हुए हैं उनमें अगर उसका नंबर आ जाएगा तो वो पूरा पैसा उसको दिया जाता है। लेकिन बाद में उसको वो पैसे जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनके पैसे भरने ही रहते हैं। ओके, तो इसको बिड्स एंड ड्रॉ टाइप्स का मेथड कहा जाता है। जस्ट लाइक बीसी, सारे मेंबर्स पैसे कलेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उतने साल तक वो चलने वाला होता है। ये बिड्स एंड ड्रॉज की तरह काम करता है। बिड्स यानी ड्रॉज यानी आपका नंबर लग गया तो आप उसको वो सारे पैसे ले सकते हो, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स के जब तक नंबर नहीं लगेंगे तब तक आपको वो पैसे भरते जाने दैट इज़ कॉल्ड बिड्स एंड ड्रॉ। ओके, तो ये चिट फंड होता है। कई बार चिट फंड की जो टेक्नोलॉजी है आपको मोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु नाम की जगह पर दिखाई देगी। बाकी सारी जगह पर चिट फंड बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चिट फंड में बहुत, उसका नाम ही है चिट फंड, तो बहुत सारा यहाँ पे पैसा लॉस होने का डर होता है, इसकी वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरा है निधि। अभी निधि का मतलब होता है जब कभी कॉन्टीजेंट सिचुएशंस आएगी, या समझो अगर कभी हम कह सकते हैं कि अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, तो उस टाइम में सब लोग मिलके जितना पॉसिबल हो सके उतना फ़ंड कलेक्ट करते हैं, और उस फंड को ही
या फंड करने के तरीके को कहा जाता है निधि। ओके, तो आपको ये सब मालूम है, निधि यानी फंड एक टाइप का होता है, जितना पॉसिबल हो सके उतना फंड लोग थ्राइविंग या देने का काम करते हैं और उस लोन को बाद उस निधि को बाद में इस्तेमाल किया जाता है एज जैसे पॉसिबल हो सके वैसे। ओके, नेक्स्ट है लोन कंपनीज। लोन कंपनीज हाई इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे स्मॉल ट्रेडर्स, लार्ज ट्रेडर्स जिनको बैंक से लोन नहीं उठाना है, उन स्मॉल ट्रेडर्स को या स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को या सेल्फ एम्प्लॉयज़, सिंपल पर्सनैलिटी को अगर होम लेना है तो भी ऐसी बहुत सारी लोन देने वाली कंपनीज अवेलेबल होती है, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, बस इतना ही होता है और इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। अगर उनका लोन आपने पे नहीं किया तो आपको आपका कोई भी सामान या निकालने का राइट्स उनको होता है, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आरबीआई का कंट्रोल है। ओके, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अगर लोन कंपनी से लोन ले रहे हो तो इसमें आपको कुछ भी रेगुलेशंस नहीं होता है। ये हाई रेट इंटरेस्ट रेट लेते हैं, लेकिन आप स्मॉल इंडस्ट्री बनाने के लिए या आप सेल्फ एम्प्लॉयज़ को भी ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं उनके पेमेंट के हिसाब से। ओके, तो आज के लेक्चर्स में हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर सीखा, जिसमें से हमने पहला सीखा दैट इज़ एंडोजीनियस बैंकर, इनको हुंडी कहा जाता है। हुंडी यानी ये कुछ लोग मिलकर इकट्ठा कर कमर्शियल बैंक में पैसे जमा करते हैं और उन्हीं पैसों को बाद में वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए, क्रेडिट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो कमर्शियल बैंक को एक टाइप के इंटरमीडिएटरीज या मिडल पर्सन का काम करते हैं। ये लोग स्मॉल ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर्स और इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सोशल तेरा यहाँ पे दिखाई देता है। इफ़ द पर्सन इज़ मोर रिच दे आर गिवन लो इंटरेस्ट रेट एंड इफ़ द पर्सन इज़ पुअर सो दे आर टेकिंग हाई इंटरेस्ट रेट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मनी लेंडर्स। यू वॉच दैट मनी लेंडर्स स्पेशली अवेलेबल इन रूरल एरियाज, दे आर टेकिंग मोर एंड मोर हायर इंटरेस्ट रेट, दे आर यूजिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव थिंग्स। फॉर प्रोडक्टिव दे आर यूजिंग इट to taking or more and more production in agriculture sectors, and if they are using unproductive so they are accepting the luxurious goods. Okay, but RBI is now taking control on money lenders. They are taking so many restrictions for money lenders because money lenders are very exploitative for farmers and small and marginal farmers, so there are for RBI is taking control on that one. Okay, next one is non-banking financial institution. In this one is included Nidhi cheat fund. All the members of cheat fund are came together and they are mobilizing some amount. If any one single person on that group, if he or she wants some money, they are given the loans for specific period or specific terms. After that one he repay it. Okay, or sometimes for particular period they are given if any one member is choose for payment, they are given payment for that one, and afterwards that members is given others payment. Okay, so this kind of work is doing by cheat fund. Cheat fund are specially available in Kerala and Tamil Nadu. Nidhis, you know that so many natural calamities or contingent situations, we are collecting so many fund, and that fund is called Nidhi. This fund is using specially for government for various purpose. And last one is loan companies. Loan companies are providing loans for high interest rates. Sometimes they are providing loan for small scale industries, and if any self-employed person who are not possibly not taking loan from banks, that person is given loan by this kind of loan companies, and but they are taking very high interest rate and no one should be restrict to them. Okay, of that one, because they are collecting the money by their own ways and providing the money by their own ways, so therefore no one should be taking control on that person. Okay, so today's lecture is over. If you have any doubts, so ask me in the next lecture. In the next lecture we are watching role money market in the India. Okay.